Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you guys doing well or fantastic. If you're watching for the very first time, let me introduce myself Anuksha Pawar. Welcome you guys on this little platform. Before starting video, I want to say that if you are visited for the very first time, then do subscribe and tap on the bell icon button that you get notified as soon as I upload any kind of video on my channel. Okay, so today's topic is about anesthesia. काफ़ी सारे लोग एनेस्थीसिया के बारे में कुछ कुछ राय रखते हैं और बाकी लोग भी जानते ही हैं एनेस्थीसिया क्या है, बट अमंग देम कुछ लोग नहीं जानते हैं. सो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक उठाया है. तो वी विल डिस्कस अबाउट एनेस्थीसिया इन दिस वीडियो इन डिटेल. What is anesthesia or what is mean that? Anesthesia is a Greek word which means sensation. An means without, aesthesia means sensation. Anesthesia case loss of sensation. सो एनेस्थीसिया सर्जरी या फिर पेनफुल प्रोसीजर से पहले पेशेंट के कॉन्शियसनेस में आंशिक या पूर्ण रूप से कमी लाने का काम करता है. इसे एनेस्थीसिया कहलाते हैं. दोज मेडिकेशंस आर कॉल्ड एज एनेस्थेटिक मेडिकेशंस. Some anesthetic medication numbs certain part of the body, whereas some anesthetic medications numbs brain to induce sleep through invasive procedures like those of heart, lungs, chest और फिर abdomen. Anesthesia temporarily blocks sensory pain signals from nerve to the center of the body. Anesthesia हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में मिलकर काम करते हैं, जो कि बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जो कनेक्शंस या फिर सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम ब्लॉक करते हैं. Anesthesia is performed by dentist or nurse, but in some more surgical invasive procedures, anesthesia is administered by anesthesiologist, or this medical doctor manage your pain before, during or after the surgery. Depending upon the types and scope of the procedure, anesthesia is divided into 3 subcategories or 3 types of anesthesia are अवेलेबल. और फिर हम 3 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है कह सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट जो है वो है लोकल, सेकंड पे जो आती है वो है जनरल और थर्ड पे जो आती है वो है रीजनल. तो लोकल की जहाँ तक बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया ये आपके बॉडी पार्ट के बस इफेक्टिव पार्ट तक सीमित रहता है. दैट्स मीन कि लोकल एनेस्थीसिया इज इफेक्टिव अप टू दैट पार्ट और एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित रहता है. इसका एग्जांपल देने जाए तो डेंटल प्रोसीजर और फिर स्किन बायोप्सी आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर लोकल एनेस्थीसिया. जहाँ तक कि जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया इज़ यूज्ड इन मेजर सर्जरीज और पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट को फुल्ली अनकॉन्शियस कर देता है. इसके एग्जांपल है आईवी एनेस्थीसिया और इनहेलेशन बाय ईथर और नाइट्रोस ऑक्साइड. और जहाँ तक कि रीजनल एनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सबआर्किनॉइड स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि सेंसरी या फिर मोटर फंक्शंस को रोक दिया जाता है. अभी आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है सेडेशन. Sedation relax you up to the point where you can have a more sleep but can be easily awake or arise. Light sedation की एग्जांपल देने जाए तो colonoscopies are light sedations best example. और light sedation can be performed by a person who is performing your surgery or with the help of nurse if they both have training to provide. Light sedation is provided by anesthesiologist. Your breathing may be affected by this deep sedation. Okay, depending upon the procedure and types of anesthesia you needed, your healthcare provider provide or administrate anesthesia via inhaling gas injection, including shots or intravenous or topical spray and patch. Certain drugs interact with anesthesia or cause bleeding or increase the risk of complications. So avoid taking food and drink before 8 to 12 hours of your surgery and stop taking herbal medicines 1 या फिर 2 weeks before your procedure and quit smoking even if it's just for 1 or 2 days. Most of anesthetic side effects are temporary or go away within 24 or sooner. So you can experience back pain, muscle pain, headache, fatigue और फिर डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग और हाइपोथर्मिया. पहली जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो है कोलैप्स लंग. सर्जरी दैट यूज एनेस्थीसिया और ब्रीदिंग ट्यूब केस कोलैप्स लंग. In this rare problems or these problems occur due to the air sacs in the lungs deflate or fill with the fluid
और नंबर 2 पे जो आती है कॉम्प्लिकेशन वो है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया की. यस, पीपल हु हैव मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया शो डेंजरस रिएक्शन टू एनेस्थीसिया, विच केस फीवर और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग योर सर्जरी. और थर्ड नंबर पे जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है नर्व डैमेज. तो अल्दो सम पीपल experience nerve damage that cause temporary or permanent neuropathic pain, numbness or discussing. After discussing those points we will discuss some remaining points. और जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम इंक्लूड करेंगे एडवांस एज पर्सन, पेशेंट्स हैविंग डायबिटिक डिसीज या फिर पेशेंट्स हैविंग किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज और न्यूरोलॉजिकल डिसीज. ओबेसिटी आल्सो मैटर एंड देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ हैविंग मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया. ओके, सो लोकल एनेस्थीसिया आपके बॉडी के सर्टन रीजन या फिर सर्टन पार्ट तक इफेक्टिव रहता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमन और फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए भी. But many pregnant women safely receiving regional anesthesia with the help of anesthesiologists. So here the anesthesia's info is getting over. So अभी जो आते हैं एंडिंग पॉइंट पे जो कि है, आई होप गाइस दिस वीडियो हेल्प यू और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव इफ फाइंड हेल्पफुल और इफ यू फाइंड इंफॉर्मेटिव टू दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल.